Today's topic, blood supply of heart. Heart is supplied by two coronary arteries that arise from the ascending aorta. So you can see here ascending aorta. This is the ascending aorta, and you can see here there is right coronary artery and the left coronary artery showing a circle. So heart is supplied by two coronary arteries. The coronary arteries, anatomically these coronary arteries not end arteries, but functionally they behave like end arteries. The blood flow from these arteries during diastole of heart. The diameter of coronary arteries is 1.5 to 5.2 mm, and left coronary artery is larger in caliber than the right coronary artery. So remember these things, these coronary arteries functionally end arteries. The origin of the right and left coronary arteries. At the root of the ascending aorta, there is a three aortic sinus present. There is one anterior, this is the anterior, and two posterior. From anterior aortic sinus, there is origin of the right coronary artery, and left posterior aortic sinus gives origin to the left coronary artery, and right posterior aortic sinus is the non-coronary sinus. In the next diagram, you can see here, this is the root of the ascending aorta. So there is a left posterior, this is the left posterior aortic sinus. So you can see here origin of the left coronary artery, and right side there is a arrow show the origin of the right coronary artery, and this is the non-coronary sinus, and this diagram showing the aortic sinuses at the root of the ascending aorta. So it is, remember these things, one anterior aortic sinus and two posterior aortic sinuses. Left posterior gives origin to the left coronary artery, and right coronary artery arises from the anterior aortic sinus, and right posterior is the non-coronary sinus. So you can see here origin of the right and left coronary arteries from the aortic sinuses, the right coronary and the left coronary sinus. The variation, conus artery, which is the normally the branch of the right coronary artery, but sometimes it separately arise from the anterior aortic sinus. तो इसको अपन थर्ड कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे. सेम जहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज हो रही है एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, वहाँ से एक कॉनस आर्टरी निकलेगी सेपरेटली, तो उसको अपन थर्ड कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं. इसी तरह से सर्कमफ्लेक्स एंड एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी, ये किसकी ब्रांचेज हैं? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, बट it may arise separately from the left posterior aortic sinus.
So these are the variation present. Now the right coronary artery. The right coronary artery arises from the anterior aortic sinus. The first point. The first is it arises from the anterior aortic sinus. First point. Then it runs between the right auricle. This is the right auricle and this is the infundibulum. तो फर्स्ट कोर्स क्या होगा इसका, राइट ऑरिकल और इसके बीच में ये रन कर रही है. देन इट एंटर इनटू द एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस. जैसा आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी, तो ये है आपकी स्टर्नोकॉस्टल सरफेस पे क्या हो गई, राइट कोरोनरी सल्कस. तो इसको आप ये भी बोलते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव. तो इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड in the right coronary sulcus and reaches up to the inferior border. Inferior border, then it runs wind round the inferior border and goes posteriorly. ये posteriorly जा रही है. It goes posteriorly. तो posterior coronary sulcus में enter हो गई. This is the on the diaphragmatic surface. Here it gives a posterior interventricular artery. ये जो branches है ये posterior interventricular branch है. तो before termination it gives a posterior interventricular branch and at the termination जो D point आप देख रहे हैं यहाँ पे ये terminate हो रही है and किससे anastomosis कर रही है, यहाँ से एक branches आ रही है जो light shade में आपको दिख रही है, ये वाली branch है. This is the branch of the left coronary artery, circumflex branch of left coronary artery. और ये जो point इनका meeting point होगा इसको बोलेंगे अपन crux. तो यहाँ पे समझ आ गई. वापस से एक बार इसका कोर्स अपन रिवाइज करते हैं. From the ascending aorta, arise from the anterior aortic sinus. So this is the point where it takes origin. Then it runs between the right atrium and infundibulum. Second step, it enter into the groove, atrioventricular groove, or you can say the coronary sulcus. Then it descends downward vertically and reaches up to the inferior border. Inferior border, then it goes posteriorly in the posterior coronary sulcus. And before termination, it gives a branch. कौन सी ब्रांच दी है इसने, posterior interventricular branch. This is the posterior interventricular branch. Then this right coronary artery anastomoses with the circumflex branch of the left coronary artery, and this point is termed as the crux, where it anastomoses with the circumflex branch of the left coronary artery. So this is the course of the right coronary artery. Now the branches, and this is the diagram of the dissected heart. You can see here the right coronary artery. This is the right coronary artery, and this is the लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. ये जो ऊपर की साइड में आपको दिख रहा है, स्टेम छोटा होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का, फिर उसके बाद ये दो में डिवाइड हो रही है. ये जो नीचे आ रही है ये हो गया एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड दिस इज द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. So this is the right coronary artery. You can see here right coronary artery. It reaches up to the inferior border. Now the branches of the right coronary artery. The first branch of the right coronary artery, you can see here, this is the conus artery.
This is the conus branch which supply the infundibulum of the right ventricle. इसी तरह से इधर से भी एक ब्रांच आ रही है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, जो इसको सप्लाई कर रही है इनफंडिबुलम को। ये ब्रांच आ रही है आपकी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और इधर से जो ब्रांच आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी, इट सप्लाई द infundibulum of the right ventricle. इसका वेरिएशन आपको पहले से मैंने बताया कि इफ arises separately from the anterior aortic sinus, it is termed as the third coronary artery. The second branch, SA nodal artery. This SA nodal artery को सप्लाई कर रही है, SA नोड को सप्लाई कर रही है, और SA नोड की लोकेशन कहाँ पे होती है? राइट एट्रियम में, जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग हो रही है, वहाँ पे SA नोड की लोकेशन होती है। और इसके अलावा जहाँ स्मूथ पार्ट और पोस्टीरियर रफ पार्ट, स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट जहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द SA नोड। SA नोड की लोकेशन बताइए, ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ द rough and smooth part of right atrium. So in case 60% of the cases, in the 60% of the cases, this SA node is supplied by the right coronary artery, but in 40% of the cases, 40% of the cases, it is supplied by the left coronary artery. So this is the conus branch and SA nodal artery. The third is right marginal artery. The third one is the right marginal artery. You can see here, this is the right marginal artery. It runs along the inferior border and reaches up to the apex. तो जो राइट मार्जिनल आर्टरी होती है, ये एक्यूट होती है, इसमें इसका नाम, इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं, acute marginal artery, or it supply the diaphragmatic surface also and right ventricle and left ventricle. Now this right coronary artery wind round the inferior border and on the posterior aspect before termination it gives a branch. कौन सी ब्रांच दी है इसने? एक ब्रांच दी है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है posterior interventricular artery. So this is the posterior interventricular artery. It gives branches to both ventricle, right ventricle and the left ventricle. दोनों को सप्लाई कर रही है posterior interventricular artery. और इसके अलावा जो posterior interventricular artery वो किससे anastomosis कर रही है? ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कौन सी ब्रांच आ रही है पीछे की साइड में किसकी? ये आ रही है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर anastomosis with the posterior interventricular branch of the right coronary artery. नंबर 1 पॉइंट, इसने anastomosis किया, इसने राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को सप्लाई किया। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट ऑल्सो सप्लाई द सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को भी ये सप्लाई कर रही है। इसके अलावा ये एवी नोडल ब्रांच भी दे रही है, इट ऑल्सो सप्लाई द एवी नोड। तो 4 पॉइंट हो गए इसको जो आपको याद रखने हैं कि ये एवी नोड को भी सप्लाई कर रही है, इसके अलावा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ सेप्टम को सप्लाई कर रही है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को कर रही है, और अनास्टोमोसिस कर रही है ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से। इसके अलावा यहाँ पे जो राइट कोरोनरी से ब्रांचेज निकल रही है वो कौन कौन सी निकल रही है? इट ऑल्सो सप्लाई द वेंट्रिकल एंड ऑल्सो सप्लाई द एट्रियम। ये जो डायगोनल ब्रांचेज होती हैं वो एक ही एरिया को सप्लाई कर रही है। जैसे जो ये डायगोनल ब्रांचेज निकल रही हैं, वेंट्रिकल ओनली सप्लाई द वेंट्रिकल। So these are the ventricular and atrial branches.
Most important point is for the posterior interventricular artery is the dominance of the heart. The dominance of the heart, the 90% of the cases posterior interventricular artery arise from the right coronary artery. So it is right dominance of the heart. But in 10% of the cases, if it arises from the left coronary artery, so there is a left dominance of the heart. So dominance of the heart depends. The posterior coronary artery takes origin from the right coronary artery or from the left coronary artery. Now the left coronary artery. The left coronary artery takes origin from the left posterior aortic sinus. Left posterior aortic sinus. So this is the point where the left coronary artery takes origin. Now it runs behind the pulmonary trunk. ये जो part आ रहा है इसका कहाँ है? Behind the pulmonary trunk. This is the stem of the left coronary artery. Then it appear between the infundibulum and the left auricle. तो infundibulum और left auricle के बीच में ये part आपको दिखाई दे रहा है जो इस कलर से है. This is the part where it is between the infundibulum and left auricle. Then it divide into two. जो येलोइश पार्ट है जो आपको दिख रहा है येलो कलर का पार्ट है दैट इज सर्कमफ्लेक्स ब्रांच. ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच. और जो पिंकिश कलर की जो ब्रांच आ रही है नीचे की साइड में ये वाली ये कौन सी है? दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच. दिस इज द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच. तो कोर्स वापस से एक बार बोल रही हूँ मैं. लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी arise from the left posterior aortic sinus. It runs behind the ये क्या है? pulmonary trunk है. इसके पीछे पीछे से ये ब्रांच आ रही है and it appear between the left auricle and infundibulum. Then it divide into two main branches. The first is circumflex branch यहाँ जो आपको दिख रही है और जो second branch आपको दिख रही है वो है anterior interventricular branch. Now the circumflex branch of the left coronary artery. It is a continuation of the main trunk. It is a continuation of the main trunk. जो येलोइश कलर की ब्रांच जा रही है जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ दिस इज द continuation of the main trunk. Then it wind round the left border and goes on the posterior aspect. तो ये लेफ्ट posterior coronary sulcus में रन कर रही है यहाँ पे और ये कहाँ तक गई है? This is the point where crux. It anastomosis with the right coronary artery. किसके साथ anastomosis कर रही है? Right coronary artery के साथ में anastomosis कर रही है. तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी और ये जो ऊपर से ग्रीन कलर के अपन लेके आए थे ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. तो यहाँ पे जो अनास्टोमस हुआ दिस पॉइंट इज क्रक्स. नाउ द ब्रांचेस इसको किसको सप्लाई किया इसने सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ने लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट आल्सो गिव्स द दिस ब्रांचेस लेफ्ट मार्जिनल ब्रांचेस भी दिए इसमें. In 40% of the heart 40% of the cases it gives the SA nodal artery. जो SA nodal artery है वो 40% cases में left coronary से निकलती है. Now the anterior interventricular branch of the left coronary artery. तो लेफ्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर किस में रन कर रही है? ये रन कर रही है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में. ये जो ब्रांच है किस में रन कर रही है?
इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। दिस इज द ब्रांच, जो ब्लैक कलर से मार्क कर रहे हैं ये ब्रांच है। इसका दूसरा नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, it runs in the anterior interventricular groove towards the apex। एपेक्स तक जाएगी और फिर उसके बाद में ये वाइंड राउंड करेगी इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड एनास्टोमोसिस विद द टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये कहाँ चली गई है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ में इसने एनास्टोमोसिस किया है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे चली गई। So this is the course of the anterior interventricular artery, also known as the LAD. It is more prone for the atherosclerosis। तो जो भी LAD ब्रांच है वो सबसे ज़्यादा प्रोन होती है मेन अबव द 40, and it is also known as the widowmaker artery। If it is blocked, there is a chances of the sudden death of the person, so it is known as the widowmaker artery। So most commonly atherosclerosis occur in this branch, and it also gives diagonal branches supply the left border of the ventricle, and it also supply the right ventricle also। Ventricular branches, the most important thing, that anterior 2/3 part of the septum supply by the interventricular artery। जो एलएडी से ही सप्लाई हो रहा है। जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है वो किससे सप्लाई हो रहा है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर से। और जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है वो किससे सप्लाई हो रहा है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच से। ठीक है। एंड इट ऑल्सो गिव्स ब्रांच टू लेफ्ट ब्रांच टू द एवी बंडल। तो सारी जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो किससे सप्लाई होता है? राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है। बट जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से सप्लाई हो रहा है। So it is also known as the widowmaker artery। So this is the diagram, line diagram showing the area supplied by the right coronary artery and left coronary artery। Now the blood supply to the conducting system of the heart। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऐसे नोडल और एवी नोडल ब्रांचेस हैं वो सब किससे सप्लाई हो रही हैं? राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई हो रही है। तो दिस ऐसे नोडल आर्टरी इन 60% ऑफ द केसेस राइट कोरोनरी आर्टरी से आई है, 40% लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। जो एवी नोड है इट इज सप्लाई बाय द सेप्टल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी which is a branch of the right coronary artery in the 80% of the people। So all conducting systems supplied by the right coronary artery except a part of the left branch of the AV bundle which is supplied by the anterior interventricular, which is a branch of the left coronary artery। So this is a summary of the arterial supply of the heart। तो समरी में क्या है कि दोनों जो आपका हार्ट है वो किससे सप्लाई हो रहा है? राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी। एट्रियम में जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट एट्रियम एंड अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, और जो लेफ्ट कोरोनरी लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल में दोनों को सप्लाई कर रही हैं, दोनों ब्रांचेस, राइट वेंट्रिकल और द लेफ्ट वेंट्रिकल। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम अभी आपको बताया, जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है उसको सप्लाई कर रही है राइट कोरोनरी, उसकी ब्रांच कौन सी? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। और जो एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से सप्लाई हो रही है। कंडक्टिंग सिस्टम अभी बताया एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल,
जो सारा कंडक्टिंग सिस्टम है वो किससे सप्लाई हो रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई हो रहा है। तो एक्सेप्शन आप ध्यान रखें, हमेशा एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे तो आप पूरा आंसर उसका लिख सकते हैं। दिस इज अगेन area supplied by the right coronary artery and the left coronary artery. Now the venous drainage of the heart. The most of the venous blood drain into the coronary sinus. जो हार्ट का venous drainage है वो कहाँ हो रहा है, coronary sinus में है। The first point, it is the largest vein of the heart. Number 2, it is situated in the left posterior coronary sulcus and it is 3 centimeter in length. Number 4, it open in the posterior wall of the right atrium. ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। कोरोनरी साइनस पे अलग से शॉर्ट नोट भी आता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। इट इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट, situated in the left posterior coronary sulcus, 3 centimeter in length, and it open in the right atrium. Now the tributaries. Tributaries is the great cardiac vein, middle cardiac vein, small cardiac vein, oblique vein of the left atrium and posterior vein of the left ventricle. ये जितने भी वेन्स अपन बोल रहे हैं इनको वन बाय वन, जो ग्रेट कार्डियक वेन, दिस इज द ग्रेट कार्डियक वेन। जो ग्रेट कार्डियक वेन है वो किसके साथ रन कर रही है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ में रन करती है। सबसे पहले इसका डायग्राम आप देखें, यू कैन सी हियर, दिस इज द ग्रेट कार्डियक वेन नंबर 1। ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आ रही है, तो यहाँ तक तो ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ में। देन जो वाइंड राउंड करती है वो कौन सी ब्रांच है, यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। तो नंबर 2, इट रन्स अलोंग विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। तो पहले एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ में, देन सेकंड सर्कमफ्लेक्स branch of the left coronary artery, it wind round on the posterior coronary sulcus and continue as a coronary sinus. This is the coronary sinus. तो ये हो गई great cardiac vein. Number 2, the middle cardiac vein. This number 2, middle cardiac vein. This middle cardiac vein runs along, यहाँ पे कौन सी ब्रांच है राइट कोरोनरी की, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। तो जो मिडल कार्डियक वेन है वो किसके साथ रन कर रही है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ में। द थर्ड इज स्मॉल कार्डियक वेन एंड यू कैन सी हियर द स्मॉल कार्डियक वेन, ये पहले किसके साथ चल रही है, राइट मार्जिनल के साथ में ये चल रही है। देन इट जॉइन द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड गोज पोस्टीरियर। जो राइट मार्जिनल किसकी ब्रांच है, राइट कोरोनरी के, तो इसके साथ साथ चल करके ये कहाँ चली गई, राइट कोरोनरी के साथ में पीछे चली गई और इट ड्रेन इनटू द कोरोनरी साइनस। नाउ द oblique vein of the लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द oblique vein of the, ऊपर वाले डायग्राम में एक देखें कि लेफ्ट एट्रियम से जो oblique vein of the मार्शल आ रही है, दिस डायग्राम, oblique vein of the लेफ्ट एट्रियम, तो वेन ऑफ मार्शल भी बोलते हैं इसको। अलॉन्ग विद दिस मिडल कार्डियक वेन, जो वेंट्रिकल से जो ब्रांचेस आ रही हैं, पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल also drain into the coronary sinus. The important point, remember here, the anterior cardiac vein is not a tributary of the coronary sinus.
अगर वीनस ड्रेनेज में अपन इसको बोलते हैं तो इट इज डायरेक्टली ओपन इन द राइट एट्रियम, तो इट इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा जो है, जो वीना कॉर्डस मिनिमी, these are the small vein drain into the nearest chamber directly। तो दिस इज द venous drainage of the heart। तो ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है? नंबर 1 ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, oblique vein of the left atrium, posterior vein of the left ventricle। So these are the tributaries of the coronary sinus। You can see here this coronary sinus open into the right atrium and it is guarded by the Sebaceous wall। This is the opening of the coronary sinus। This is the opening of the coronary sinus। This is the inferior vena cava। It open in the right atrium and guarded by the Eustachian wall, and this is the coronary sinus open in the right atrium। Now the clinical application, angina pectoris। Angina pectoris, if the coronary artery become narrow and blood supply of the cardiac muscle reduced। इस केस में अगर एक्सर्शन करेंगे या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और रिड्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट का, तो क्या होगा? पेशेंट को चेस्ट पेन होगा एंड इट परसिस्ट अप टू द 20 मिनट्स। और जैसे ही वो रेस्ट करेगा, जो पेन है उसका चला जाएगा। तो पेन अकर ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट। और पेन किस रीजन में हो रहा है? लेफ्ट प्रीकॉर्डियम रीजन में हो रहा है। और रेफर कर रहा है उसका पेन कहाँ तक जाता है? जो लेफ्ट साइड की मीडियल साइड है, आर्म, फोर आर्म की उस साइड में रेडिएट करता है। तो लेफ्ट प्रीकॉर्डियम से रेडिएशन हो रहा है और पेन 20 मिनट्स तक हो रहा है उसको, और रेस्ट पे वो वापस से उसको रिलीफ मिल रहा है। बट इन केस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, पेन कैसे होता है? उसको रेस्ट पे पेन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो रहा है? उसको एक्सर्शन में पेन हो रहा है, 20 मिनट्स तक रह रहा है, और उसके बाद जैसे ही वो रेस्ट कर रहा है तो उसको रिलीफ मिल रहा है। बट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता है, उसको रेस्ट पे ही पेन होता है, 30 मिनट्स से ज़्यादा उसको पेन रहता है। और तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। कॉजेज में क्या क्या है इसके? यू कैन सी हियर स्पाज, blood clotting, atherosclerosis, and you can see here in this diagram there is a atherosclerosis and there is a deposition of the fat। The arteries, जो स्पेस है आर्टरी में वो क्या है? वो नैरो हो गया है। तो जब भी एक्सर्ट करेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो उस पार्ट को सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो पेन होगा। तो दिस इज द कॉजेज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइना कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। जो लेटेस्ट टेक्निक है वो क्या है? एंजियोप्लास्टी। तो उससे पहले एंजियोग्राफी करते हैं। तो सर्जन क्या करता है? कैथेटर डालता है। कैथेटर कहाँ से डाल सकते हैं? इसमें कैथेटर डाल सकते हैं रेडियल आर्टरी से डलता है, फीमोरल आर्टरी से। और जो रेडियो ओपेक डाई है वो कहाँ तक पहुँचाते हैं? एओटिक साइनस तक। वहाँ पे डाई इंजेक्ट करते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दोनों में से चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, और पेशेंट को बताते हैं कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। रिलेटिव्स को पूछते हैं कि इमीडिएटली आपको एंजियोप्लास्टी करनी है। अगर पेशेंट को रिस्क है तो उसी वक्त ही उसको एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं? जो कैथेटर डाला है, ये जो कैथेटर आप देख रहे हैं आर्टरी के अंदर बैलून शेप्ड, वो क्या करेंगे? ये जो कैथेटर है
क्या होगा, जो बैलून शेप्ड कैथेटर है जैसे ही वहां पे जाएगा जहाँ पे ब्लॉकेज है तो वहां पे उसको इन्फ्लेट कर देंगे, तो वो क्या करेगा, इसको फ्लैट कर देगा। जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाला पार्ट है वो क्या है, वो प्लाग फ्लैट हो जाएगा, तो इसकी साइज जो है ल्यूमन की वो इंक्रीज हो जाएगी। और इन अदर केसेस यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज भी इंजेक्ट करते हैं थ्रू द कैथेटर एंड दिस एंजाइम डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। सो in the intraluminal instrument with rotating blade and laser have also been employed. After dilation of the vessels, the intravascular stent may be introduced to the to maintain the dilation. जो स्टंट है वो डाल देते हैं, उससे वो क्या होता है, जो सेमी रिजिड ट्यूबुलर मैशेस है कोलैप्स नहीं होता है ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन. दिस इज द स्टंट पास्ड इन द ब्लॉक्ड आर्टरी. Now the myocardial infarction. What is the myocardial infarction? अभी मैंने आपको बताया, a sudden block of the one of the larger branch, either coronary artery, leads to the myocardial ischemia. और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, रेस्ट पे पेन होता है, इसके साथ में क्या होता है, सेंसेशन ऑफ द प्रेशर और सिंकिंग, ऐसा लगता है जैसे कुछ डूब रहा है और बहुत ऐसे कुछ जकड़ रहा है चेस्ट में, और ये द पेन लास्ट लॉन्गर देन द 30 मिनट्स. इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ की कंप्लेन करेगा पेशेंट. और इन दिस केसेस देर इज अ चांसेस ऑफ द नेक्रोसिस. नेक्रोसिस क्या होता है, पैथोलॉजिकल टिश्यू डेथ हो जाएगी उस एरिया में जिसमें ऑक्लूजन है, वहां पे जो है टिश्यू नेक्रोज्ड हो जाएगा, वहां पे सप्लाई नहीं मिल पाएगी, आर्टरी ब्लॉक हो गई, वहां पे इschemia हुआ, डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन हो गया एंड पेशेंट मे बी sudden death occur. So this is the diagram showing the myocardial infarction due to blockage of the anterior interventricular branch of the left coronary artery. क्योंकि ये मेजर आर्टरी आ रही है और इसको अपन ने एलएडी बोला है, विडोमेकर आर्टरी बोला है, तो इट शोइंग द infarction. So in case of the myocardial infarction or in case of the blockage more than the 2, अगर 2 तक होता है तो स्टंट लगा सकते हैं, but in case of the more than 2 blockage the doctor suggests open heart surgery. There is a coronary bypass graft जो ओपन करके बाईपास कर देंगे. इसमें बाईपास में क्या करेंगे, so you can see the blockage. The first diagram showing blockage in the right coronary artery. ये जो blockage show हो रहा है right coronary artery, blockage in the left anterior descending coronary artery. तो इस ब्लॉकेज के लिए क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, इसको बाईपास कर देंगे, जो ब्लॉकेज वाला एरिया उसको बाईपास कर दिया. तो इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी द, और ग्राफ्टिंग कहाँ कहाँ से अपन ले सकते हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी ले सकते हैं, ग्रेट सफेनस वेन ले सकते हैं एंड रेडियल आर्टरी ले सकते हैं. तो इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी द यूजेस ऑफ द राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी. यहाँ पे इसने इसको बाईपास कर दिया है, ब्लॉकेज के बाद में ही इसने ग्राफ्टिंग करी और मेन वेसल्स के साथ में जोड़ दी. इन द सेकंड डायग्राम ग्राफ्टिंग किससे की है, ग्रेट सफेनस वेन से, और इसको ब्लॉकेज के बाद कहाँ से जोड़ दिया, मेन वेसल से जोड़ दिया. तो दिस इज द कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट. थैंक यू.